कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम्म और नागालैंड से गुजरात तक मैंने पाया है कि मुझे जो जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने भाषा के बियॉन्ड जाकर मेरी मदद की है। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये बात कहते हैं कि हम तीसरी महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं, बहुत तेजी से इस हो रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ है, कल्चर एंड हेरिटेज। आज से लगभग 1 दशक पहले थॉमसन राउटर फाउंडेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। सम रैंडम 550 पीपल से पूछा था कि फॉर वीमेन ट्रैवलर व्हाट आर द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज। दुख की बात ये थी कि उस सर्वे में हम भी मौजूद थे कि हम हमारे देश को भी वनरेबल घोषित किया था उन लोगों ने, और हम सीरिया और अफगानिस्तान की कतार में थे। अच्छा। थॉमसन राउटर एसोसिएशन के जो ये सर्वे है ये एक प्रोपेगेंडा है। मैंने ट्रैवल किया और डिफरेंट स्टेजेस में ट्रैवल किया मेरी लाइफ की। इवन आई ट्रैवल्ड इन माय प्रेगनेंसी। मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। महिलाएं अकेले यात्राएं नहीं करती थी। हमने जब यात्राएं शुरू की तो हम पेपर स्प्रे कैरी करते थे। अब महिलाएं बिंदास होकर यात्राएं करती हैं। आज अगर आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन में, द मोमेंट यू विल बोर्ड द ट्रेन, 2 women constable will come to you, ask you, आप मिस सो एंड सो, उन्हें पता है आपका नाम, आपका बर्थ नंबर, और वो आपको पूरा एसओपी समझाएंगी कि किसी भी आपात परिस्थिति में अगर आपको सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे हमसे संपर्क कर सकती हैं। ये कितना बड़ा भरोसा है एक अकेली महिला यात्री के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर कुछ समस्या आएगी तो विमेन कांस्टेबल से मैं संपर्क कर सकती हूँ। जो यहाँ से हज करने लोग जाते हैं उनके बैग्स पर ना बड़े बड़े तिरंगे के लगे होते हैं। वो इतने हाजियों में उनकी पहचान भारतीय की पहले है, बाद में मुसलमान की है। मुसलमान तो सभी हैं वहाँ पर, लेकिन आप अपनी देश से जाने जाते हैं। आपको जो ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा ना, आप अचानक बीमार हो जाएंगे मीना के मैदान में या कहीं पर भी, तो आपको ट्रीटमेंट पता है कौन दे रहा है? भारतीय सेना के डॉक्टर। Namaste. My name is Neena Rai, and I'm the author of the books Amazing Ayodhya and Adbhut Ayodhya. Today on the Power Table, we have with us Dr. Kainat Kazi, who's India's first female solo traveler and a cultural conservationist. Welcome. Namaste. Namaste. It's lovely to have you here. Shukriya. And I want to start by asking you, what inspired you to become a solo traveler? And I believe you've covered around 3 lakh kilometers in only 5 years. When I was small, in my social science textbooks, there was a picture of Fahian. Picture of? Fahian, the great traveler. Okay, the Greek okay, that guy. Okay. And it was fascinating. Okay. Knowing about that traveler, that a guy from China traveled all around, traveling, experiencing things, and writing about it. Yeah, and he chronicled quite a lot, right? Yes. That inspired me a lot. And at the very same time, a question popped up in my mind, a small girl from a small town, that he was a great traveler, and there are so many great travelers in the history, but there was not a single women traveler. In my knowledge, I asked people, but there was not a single name popped up. Why there is no women as a traveler? If there would be accounts written by a women traveler, maybe they would be more sensitive, more emotional, and can touch the emotional part of human life and the history and the cultures. Minute observation. Women are known for the minute observations. So that time I decided that I want to do this. Okay. I want to become a traveler. Okay, that's wonderful. And you think that women notice things differently while traveling than men do? Certainly. Can you give us an example? Yes. You travel in different countries in Europe, you will see all those countries ruled by women emperors. They are beautiful. Is the aesthetics. Women always focus on the detailing, minute detailing, and the beauty aspect of anything. So that makes things more detailed. So which country do you think turned out to be the most beautiful, or which state or place you thought was very beautiful that was done by a woman?
that you think that stood out for you? I traveled quite a few countries in Europe, but I actually loved Netherlands. Netherlands. Okay. Netherlands. Okay. So, in fact, the story of tulip. Uh-huh. What is the story? Tulip is known as the flower from Netherlands, but Yes. to your surprise, maybe you know this, it traveled from Himalayas. There It was was- a time when the queen Yeah. supports all the botanists and the young enthusiastic travelers and gave them a challenge: go travel the world and bring a exotic flower for me. And they used to call that flower hunters. Mm-hmm. They used to travel all around the world and find out a most beautiful and exotic flower, and that's how they landed in Himalayas and found tulip and took it to Amsterdam, and now it is known from Amsterdam's identity, a flower from Amsterdam. Yes, in fact, in the Himalayan region and the hilly regions, the flowers with bulbs, they are the ones that proliferate because that's the kind of weather that, sort of supports it, whether it's lily, whether it is tulip, they seem to do pretty well. Am I right? In your travels, you must have noticed Yes, this as well. even we can talk about a very native thing. Yeah. And the best, that is saffron. Saffron, yes, of course. Saffron is Indian in entire world. Yes. The saffron cultivated in Pampur, that's the best saffron. Yes. Despite the fact that you can find saffron in Iran also, in Central Asia also, but the saffron from Pampur is exotic. Okay. And it also comes from the bulbs. Yes. I want to ask you, how did you manage to cover such a vast range? I mean, 3 lakh kilometers in a short span of time. How did you manage to do that? जब भी मैं मेरी सामाजिक विज्ञान की किताबों को पलटती थी, जी। उसमें मुझे भारत के अलग-अलग समाज, अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ने को मिलता था। तो मैं सोचती थी ये सारी चीजें मुझे पुस्तक में देखकर नहीं समझनी है, मुझे इन्हें जीना है। एक ट्रैवलर के लिए सच वो है जो उसने देखा, हाँ, सच वो है जो उसने चखा, हाँ, सच वो है जो उसने महसूस किया। वाह! हाँ। तो बस यही सोच के शायद कभी फाहियान निकले होंगे अपने गांव से, और यही सोचकर इब्ने बतूता और हम भी निकल पड़े कि आप सच में सिर्फ ट्रैवलर हैं कि शायर भी हैं? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य ना? मेरी हाँ, पीएचडी हिंदी साहित्य में है, और जो भी हूँ आज हाँ, मेरी भाषा के लिए हूँ। हाँ, 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 मुझे हिंदी साहित्य ने बहुत दिया है, बहुत नवाजा है, हाँ। और इससे ज्यादा समृद्ध भाषा मुझे और कोई नहीं लगती, और बहुत गर्व से हिंदी वाली हूँ। नहीं, मैं जब आपसे बात करती हूँ, जब आपसे वार्तालाप करती हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि आपकी हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, जो आज के ज़माने में मैं देखती हूँ कि बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। हिंदी भाषा कोई भी हो, देखिए भाषा केवल एक माध्यम है अपनी भावों को एक्सप्रेस करने का, जस्ट अ मीडियम, कुछ भी हो सकता है वो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोस कोस पर बानी बदलती है, स्वाद बदलता है, पानी, इंटेलेक्ट ग डायलेक्ट बदलता है, हाँ, और हमारी जो भाषाएं हैं उसमें बड़ा अपनापन है। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा भी दूर जाऊंगी, मुश्किल से अगर मैं 100-200 किलोमीटर भी आगे चली जाऊंगी, तो भाषा में वो बोलियों का समावेश, बोलियों का प्रवाह आना शुरू होगा, और वो उस मिट्टी की खुशबू है। करेक्ट। आप मध्य भारत की तरफ चले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, वो उस रीजन की महक साथ में लेकर आते हैं। करेक्ट। तो अगर आप ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर का एक धर्म होता है, ट्रैवलर का कोई धर्म नहीं होता। यही उसका धर्म होता है कि वो जो भी उसकी यात्रा में उस पर आता है, उस तक आता है, वो उसे सहर्ष स्वीकार करता है, उसे सर माथे लगाता है। तो वो भाषा होती है, वो खान पान होता है, वो जो भी उसे मिलता है वो उसको गले लगाता है। आपने इतना ट्रैवल किया, आप यहाँ वहाँ जैसे गई, तो आपको लैंग्वेज, हम क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हुई नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। तो ये जो सब रील्स बनाते हैं कि आप हमारी भाषा क्यों नहीं बोलती हैं और आप यहाँ क्यों हैं, जो लोगों को बेइज्जत करने की जो कोशिश की जाती है, काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है। नॉर्थ में तो उतना नहीं होता है, परंतु साउथ में मैं देख रही हूँ कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लोगों को बेइज्जत करना कि आप हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं। उसके बारे में आपका क्या सोच है? मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
और नागालैंड से गुजरात तक यात्रा की है और किसी हद तक अपने देश की आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया है। और मैंने पाया है कि मुझे जो जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने भाषा के बियॉन्ड जाकर मेरी मदद की है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में हैं। और कम्युनिकेट करने के लिए भाषा बहुत छोटी चीज है। फर्क इतना है कि सम्मान। अगर आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है, वही बात है, आप मेरी माँ का सम्मान करेंगे तो मैं आपकी माँ का सम्मान करूंगा। और कहीं से भी मुझे अगर ऐसा आभास होगा कि आपने मेरी माँ का अपमान किया है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसको हमें बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए कि हम दोनों का सम्मान करें। और ये सब हिंदी की बहनें ही तो हैं, मासियां ही तो हैं। और सारे सबके सब संस्कृत की पुत्र और पुत्रियां हाँ, हैं। इनफैक्ट मैं इसे इस तरह भी देखती हूँ कि हमारे जो देश की अलग अलग भाषाएं हैं वो भाषाओं से ज्यादा जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो वो डायलेक्ट हैं, वो भाव है, भाषा से ज्यादा भाव है। तो मैं अगर कोलकाता में ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बस सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है ये और मुझे समृद्ध बनाएगा कि अगर मैं थोड़ा सा बांग्ला अभी सीख लूंगी तो इससे कनेक्ट करने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो बहुत बार जैसे मैं किसी से बात ऐ दादा केमन आछो, तो वो टोन है, वो भाषा से ज्यादा भाव है, एंड दैट इमीडिएटली कनेक्ट्स। यस। हम कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर में वहाँ वो लोग थैंक यू की जगह शुक्रिया कहते हैं। धन्यवाद की जगह शुक्रिया कहते हैं। शुक्रिया कहते हैं, वो उनका कल्चर है। आप अभी मैं डाउनटाउन में ट्रैवल कर रही थी और एक वुडन कार्विंग आर्टिस्ट के घर में गई और उनकी तहजीब का हिस्सा ये है कि महिलाएं जब महिला को देखेंगी तब वो बाहर निकलती है। तो घर के आंगन में उन्होंने मुझे पाया कि एक स्त्री आई है तो उनके घर की स्त्री बाहर आई और कश्मीरी भाषा में माँ के लिए शब्द यूज होता है मौजी, मौजी। तो किसी ने बताया कि कोई महिला आई हैं तो वो मौजी घर से निकल कर आई और पहली बार हम मिल रहे हैं, मैं शूट करने के लिए गई हूँ तो थोड़ी सी झिझक तो है कि हम डाउनटाउन में ऐसे ही दंगलियों में घूम रहे हैं और अचानक किसी के घर में घुस जाए, बोले कि मुझे शूट करना है, पता नहीं वो उसको स्वीकार करे या ऑफेंड हो जाए। तो मैंने उन्हें अपना पर्पस बताया, उनकी मौजी आई। द मोमेंट दैट लेडी सॉ मी, उन्होंने बाहें फैलाई और मुझे गले लगाया बहुत कस के और मुझे बोसा दिया यहाँ यहाँ, जस्ट लाइक कि कोई बेटी अपने मायके आई हो और माँ उसे देखते ही ऐसा करेगी। ऐसा क्यों? ये उनका कल्चर है। अच्छा। इसके पीछे ये सूत्र और पीछे जाता है सेंट्रल एशिया में ईरानी कल्चर है। ईरानी बहुत मीठा, बहुत ही शीरो शकर। आज अगर हम हमारे पास अगर तहजीब और तमीज की बात आती है तो हम लखनऊ को रेफर करते हैं। आप एक बार कश्मीर जाइए और डाउनटाउन के चक्कर लगाइए तो आपका उसका सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो यायावर हैं, जो यात्री हैं, वो इतिहासकारों से ज्यादा ईमानदार हुए हैं। Of course, because they see what they write. एक्चुअली, और उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि आपके ऊपर एक एडिटर बैठा है, वो जिसने ये इतिहास लिखवाया है उसके हिसाब से वो उसे चॉप करेगा और वो पब्लिक डोमेन में जाएगा जो कि उसे लिखवाने वाला चाहता है। Don't you think that they are also colored in terms of their culture? Because when I read Arab travelers, how they have described जैसे कि Nordic civilizations, how they have described is very different. Ibn Battuta के travels जो descriptions आते हैं Ibn Battuta में, वो बहुत different हैं जो Chinese travelers ने encounter किए हैं। चाहे and especially when they have covered Europe and they have covered India. इंडिया के बारे में क्या लिखा है, चाइनीज ने अलग लिखा है और अरब ट्रैवलर्स ने अलग अलग चीजें लिखी हैं। सो व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दिस टू? इजंट दिस बीइंग कलर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्पेस, लाइक बीइंग? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि सबसे पहले कि आप किस नियत से यात्रा कर रहे हैं। करेक्ट। कि क्या तलाश है। जब चाइनीज आए तो वो ज्ञान की तलाश में भारत आए, वो व्यापार की तलाश में नहीं आए। हाँ। एट द सेम टाइम अरब्स जब आए तो वो व्यापार के लिए आए। कॉन्क्वेस्ट दो तरीके से आए भारत में। जो डाउन साउथ आए वो व्यापार की नियत से आए, जो सिल्क रूट से आए, हिंदू कुश की तरफ से आए, वो कॉन्कर करने आए। और उसमें अरब से ज्यादा मध्य भारत के लोग जितने भी भारत में इन्वेडर्स आए, तो इन्वेडर्स का टोन क्या होगा, उनका चीजों को देखने का नजरिया क्या होगा, व्यापारियों का क्या होगा, वो वेरी करता है। और जो बिल्कुल ही ज्ञान की तलाश में आया है, जैसे फायान, हुएनसांग,
तो वो तो बहुत ही अलग नजरिए से चीजों को देख रहा है। I once spoke to a lady who was an expert in the Chinese, the Indo-Chinese culture. She said Chinese जो होते थे हमारे यहाँ पे लोगों को भेजते थे, जो इंटेलिजेंसिया होती थी हमारे यहाँ की, जो गुरुज होते थे, उनको अबडक्ट करने के लिए. So they would be abducted and taken to China and forcibly married to Chinese women. I thought it was very shocking, but it has happened in the past. So of course they did come for knowledge. I'm just validating. Actually, I'm just agreeing to whatever you have said. अच्छा, आप एक ब्लॉग भी लिखती हैं. आप अपने ब्लॉग के बारे में हमें बताइए. आई बिलीव इट्स कॉल्ड राहगिरी. जी। जब आज से लगभग एक दशक पहले का समय था, सोशल मीडिया का बूम शुरू हुआ और ब्लॉगिंग नया नया शुरू हुआ, तब हमें एक गैप महसूस होता था कि इंग्लिश में तो ब्लॉग्स कंटेंट काफ़ी अच्छा अवेलेबल होता था सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन वर्ल्ड में, पर हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं होता था और अच्छी तस्वीरों के साथ तो नेक्स्ट लेवल के एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगा ये एक गैप है जिसे भरा जा सकता है और आई एम कमिंग फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, तो ये मेरे लिए एक फ्री स्पेस है कि मैं बेहतर भाषा में चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकूं और मेरी लगातार यात्राएं चल ही रही थी। इससे पहले मैं AIR के साथ, मेरा ऑल इंडिया रेडियो के साथ कहानियों का संग्रह आता था, कहानियां ब्रॉडकास्ट होती थी। तो ब्लॉगिंग शुरू की, फोटोग्राफी करती थी, तो फोटोग्राफी के लिए अच्छी तस्वीरें और अच्छा कंटेंट, इस पर एक लंबे समय तक काम किया। फिर अखबारों में लिखना शुरू किया और पहले जब आप यात्राएं करते हैं तो उसकी शुरुआत तो एज अ टूरिस्ट ही होती है कि आपके अंदर अपने देश को देखने की एक इच्छा होती है जो सब में होती है। धीरे धीरे जो आपका इंटरेस्ट का विषय है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैंने भी एक टूरिस्ट की तरह ही शुरू किया और धीरे धीरे मुझे सोलास जो मिला वो इंडियन हेरिटेज में मिला, इंडियन कल्चर में मिला। तो वहाँ से जो मेरी राइटिंग है वो धीरे धीरे हमारे हेरिटेज की तरफ, इंडियन कल्चर की तरफ झुकने लगी, उसमें गहराई आने लगी। तो इस तरह ब्लॉग में मेरी कोशिश यही थी कि अपने भारत की सुंदरता को दिखा सकूं। इस बीच यूरोप में काफ़ी कुछ ट्रैवल किया तो मैंने पाया कि एक डिफरेंस है इस पूरी कहानी में। यूरोप में फॉर एग्जांपल अगर मैं नीदरलैंड्स की बात करूं तो एम्स्टर्डम एज अ स्मार्ट सिटी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी हेरिटेज को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। उनका जो हेरिटेज टाउन है, कनाल्स वाला जो एरिया है, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, उन्होंने उसे प्रिजर्व किया है। वहाँ होटल्स भी हैं, हेरिटेज होटल्स भी हैं, लेकिन 3 स्टोरी 4 स्टोरी होने के बावजूद वहाँ लिफ्ट नहीं है। वही वुडन पतली सीढ़ियाँ हैं, आपको अपना सूटकेस सीढ़ी से ही खींच कर ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर वाइज उसको संजोने का प्रयास किया है। और साथ में उसके आसपास का जो पूरा एरिया है, ये कह सकते हैं कि एम्स्टर्डम का ग्रामीण परिदृश्य, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। वहाँ लोग जब खेतों में काम करते थे तो वो लकड़ी के क्लॉग्स पहनते थे, करेक्ट, राइट। अब वो जूते पहनते थे, एक जमाना था, एक दौर था, लेकिन वो उनकी हेरिटेज है। तो उन्होंने उस जूते बनाने की फैक्ट्री को प्रिजर्व किया। और आप जब डे विजिट के लिए जाते हैं आप सबर्ब एरिया में, तो वो एक बार आपको वो फैक्ट्री दिखाने लेकर जाते हैं। फिर वो एक बार उस दुनिया में पानी का बड़ा मेल है, यानी मछुआरों की जिंदगी कैसी है, उनके गांव कैसे होते हैं, वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो विंड मिल्स हैं उनको संजोया है, चीज़ कैसे बनता है, चीज़ फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये डे विजिट्स के तौर पर वो आइटिनरी केवल एम्स्टर्डम की आपके 4 से 5 दिन की हो जाती है। जबकि अगर मैं इसकी तुलना करूं तो हमारे पास तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बस एक ही फर्क है, हम अपनी चीजों पर अभिमान नहीं करते। हम अपनी चीजों को बहुत ग्रांटेड के लिए लेते हैं। ये मैंने इंडिया में देखा, ये एटीट्यूड देखा है। इंडियन टूरिज्म परिदृश्य में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो ऑपरेटर्स भी थे वो क्या बेच रहे थे? गोल्डन ट्रायंगल। यस। अ टूरिस्ट विल कम, दिल्ली आएगा, कैब में बैठेगा, आगरा जाएगा, आगरा से जयपुर जाएगा, जयपुर से वापस दिल्ली आएगा, ओके टाटा बाय बाय, और काम तो यस। और वो जब बेचने भी खड़ा होगा इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो बोलेगा हमारा सीजन तो साल के 6 महीने होता है, अक्टूबर से मार्च। मतलब हमने अपनी आधी साल को खुद ही डिडक्ट कर दिया, खत्म किया, खत्म कर दिया। इनको नहीं
समझ में आ रहा है कि हमारा मानसून कितना खूबसूरत है. Correct. I mean, we have the Cherrapunji. We have Cherrapunji, which We has have that. Kerala. Yes, you have Kerala. There was a time कि जब ट्रावणकोर के राजा और उनकी प्रजा Hmm. in their best of the clothes Hmm. मानसून का स्वागत करने समुद्र तट पे जाते थे. Correct. तो हम उस इतिहास से आ रहे हैं हाँ. कि हमने शावर्स को सेलिब्रेट किया है. Hmm. और वेस्टर्न घाट्स, पूरा वेस्टर्न घाट में अलग अलग रूपों में हम मानसून को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. Hmm. राइट फ्रॉम केरला टू कर्नाटक टू गोवा टू लास्ट इन गुजरात. इंद्रदेव ऋग्वेद के बहुत ही पावरफुल किंग, पावरफुल गॉड इसीलिए माने जाते थे, अमंगस्ट अदर थिंग्स. इंडिया ने इंद्र- हमेशा सेलिब्रेट किया यस. मानसून को, यस. और हम उसको ही नहीं बेच पा रहे थे हाँ. क्योंकि हमें लगता था कि ये कैसे होगा, हाँ. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. लेकिन वो सारी चीजें तो डुएबल थी. हो हम- सकता है पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान ना दिया हो. हमें अपनी चीजें ही मार्केट नहीं करनी आती हैं. एंड ये दिस इज अ मलेज दैट आई हैव सीन इन आवर कल्चर. वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर ओन थिंग्स. एंड आपने जैसे क्लॉग्स की बात की, डू यू नो ये क्लॉग्स के छोटे छोटे से बनाते हैं. जैसे ये एम्स्टरडेम जाइएगा तो आपको 2-3 चीजें सुवेनियर्स में मिलते हैं. छोटे छोटे क्लॉग्स यू गेट अ सुवेनियर्स, बेल्स छोटे छोटे, एंड छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं उनके. एम्स्टरडेम, दीज आर द सुवेनियर्स, राइट. मैं अगर देखती हूँ हमारे देश में, तो पहले आपने जैसे ताजमहल की बात की, तो वो ताजमहल का सुवेनियर हर किसी को पकड़ाते थे, याद है ये? बिल्कुल बिल्कुल. आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है. आई मीन देयर आर मोर एंड मोर गॉर्जियस थिंग्स टू लुक एट. दैट्स नॉट जस्ट ओनली थिंग. और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ताजमहल के पहले भी एक और चीज फेमस थी. आप गेस कर सकती हैं क्या? गेस करिए, इंडिपेंडेंस के टाइम की. आप बताइए, आप क्या बता रही हैं? स्नेक चार्मर्स. द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स. So why did India get to be known as the country of snake charmers is- and snake oil and This all is of that? completely इनफैक्ट पता है, हमने उस चीज को वैसे प्रोजेक्ट नहीं किया जैसे किया जाना था. ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब फॉरेन से गेस्ट्स आते थे इंडिया में, तो हमारे जो उस समय के जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, तो वो सांपों का नाच दिखाते थे. एक्चुअली सच यही है. अब सांपों का नाच और बीन में आप गेस्ट के सामने बजाइएगा तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे देश. दिस इज व्हाई इट वाज कॉल्ड द इंडिया वाज नोन. एक्चुअली ये डिपेंड करता है लीडरशिप पर. यस. हमारे लीडरशिप ने दुनिया के सामने खुद को क्या प्रोजेक्ट किया. करेक्ट. हम प्रकृति के उपासक हैं. हम्म. आज सस्टेनेबिलिटी की बात पूरी दुनिया कर रही है. हाँ. हम तो जी रहे थे. हाँ. सनातन संस्कृति क्या है? हम्म. प्रकृति. हम्म. प्रकृति की उपासना हमसे बेहतर कौन कर सकता है? हम्म. और हम शाश्वत हैं. हम्म. आपने एक टर्म सुना होगा, नील नदी सभ्यता थी, हम्म. हड़प्पा सभ्यता थी, हम्म. काशी है. है. हम्म. यही फर्क है. हम्म. हमारी एवरीडे लाइफ, हमारी रिचुअल से लेकर हमारी क्रॉप साइकिल तक, हमारे फेस्टिवल, हम्म. हमारे कपड़े, हमारे कलर्स, हमारे हर चीज हम्म. प्रकृति के साथ बंधी हुई है. करेक्ट. मंदिरों के साथ और प्रकृति के साथ. Temple. साड़ियाँ, साड़ियाँ, सब्जी, सब कुछ. हमारा स्वाद, हाँ. हमारे हर प्रदेश का एक अलग स्वाद है. हम्म. वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है. वो एक अलग हिस्ट्री है. हम्म. मॉन्यूमेंट्स. हम्म. जब गोल्डन ट्रायंगल बेच रहे थे तो आपने क्या दिखाया? हम्म. आपने दिखाया मुगल आर्किटेक्चर, विच हम्म. इज सो न्यू. हम्म. उसका इतिहास कहाँ पुराना है? करेक्ट. उसके बाद आप कहाँ ले गए? राजस्थान, हम्म. राजपूताना आर्किटेक्चर, हम्म. वो भी कोई बहुत पुराना नहीं है. हम्म. जबकि हमारे पास चोल, चेला, पांड्या, हम्म. होयसला, हम्म. कितनी सारी डायनेस्टी हैं डाउन हम्म. साउथ में. हम्म. उनके टेम्पल्स कितने जबरदस्त हैं. हम्म. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आज अगर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये बात कहते हैं कि हम तीसरी महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं, बहुत तेजी से इस हो रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? हम्म. मैं खुद में जब इस बात को सोचती हूँ, हाँ. तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो तकनीक में हमसे बहुत आगे हैं. अच्छा. ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पावर में हमसे आगे हैं. करेक्ट. कुछ एक देश हैं जो हाँ. हमसे पावर में आगे हैं, तकनीक में आगे हैं, पैसे में आगे हैं, इंफ्रा में आगे हैं. हाँ. टूरिज्म की भी बात करें, उसमें भी कुछ देश हमसे आगे हैं. हम्म. फिर हम किस में आगे हैं? हम्म. सिर्फ एक ही चीज़ है,
कल्चर एंड हेरिटेज, हम्म। हम इन सब से आगे हैं। तभी मोदी जी बात करते हैं विकास भी विरासत भी, जो हमारी बिल्कुल विरासत है वो औरों के पास नहीं है, नहीं है। और हमें इसे अच्छे से संजोकर बटोकर और बहुत अच्छे से संभाल करके रखना है। बिल्कुल बिल्कुल एक हमारे यंगर जनरेशन में एक दौड़ लगी है कि हम कैसे वेस्टर्नाइज हो जाएं, जितना जल्दी वेस्टर्नाइज, और हर हमारी सभ्यता की जो एक पहचान है, चाहे वो तिलक लगाना हो, सिंदूर लगाना हो, चूड़ियां पहनना हो, पायल पहनना हो, उसको आज इस नज़र से आई मीन मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री के जेवर और मैं स्त्री के उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो आप वो देखिएगा कि उस पे एक अलग निगाह से देखी जाती है। पुराने ज़माने में आदमी भी अपने कान छिदाते थे बिल्कुल। और कान में कुंडल पहना करते थे, या आजकल आजकल आप नहीं दिखेगा, आजकल वो वेस्ट को करते हैं, एक कान में पहनेंगे। बिछिया बिछिया। मैं पहनती हूँ हाँ। देखा था क्योंकि मैंने। वो साइंटिफिक है, यस यस। और हमारी हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऐसे ही बस निराधार है, हर चीज का आधार है। फर्क इतना है कि हमने समय के साथ अपने आप को भुला दिया। करेक्ट। जबकि अगर हम देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की बात करें, राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान कहाँ से भरी थी? हम्म। उन्होंने उसको अपना एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट बना के रखा है। कुछ नहीं है, एक स्ट्रिप है हाँ कि यहाँ से उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। हाँ। हंसी आती है ऐसी चीजों पर कि ये क्या राष्ट्रीय महत्व की चीजें, आओ हम दिखाते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल दिखाते हैं तुमको। अब गेस जब ना करो कि विज्ञान था, कैसे। ना हाँ। कंप्यूटर था, ना टेक्नोलॉजी थी, और उन स्थापतियों को मैं जब भी यात्रा करती हूँ हम्म और ऐसे संरचनाओं को देखती हूँ, इन मंदिरों को देखती हूँ, तो मैं अ, गर्व से इतना भर जाती हूँ, और मेरा मन हम्म। नमन करता है उन अदृश्य लोगों के प्रति, जिन उन स्थापतियों के प्रति। स्थापति यानी कि आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट्स यस। जिन्होंने इतनी महान संरचनाएं बनाई। शिल्पीकार, स्थापत्य। शिल्पी, स्थापत्य, हाँ। ये सब स्थापति की जिंदगी एक हम्म पूरी मेडिटेशन था। हम्म उसको ज्ञान होना चाहिए था, उसको धातु विज्ञान, उसको मैथमेटिक्स, उसको न्यूमरोलॉजी, उसको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कितने सारे शास्त्र थे। देवताओं का विज्ञान से होना चाहिए था। बिल्कुल। किस सीजन में क्या उगता है, अदरवाइज उसका डेकोरेशन कैसे बनता है, कि किसने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, कौन से देवी देवता क्या आप पकड़ते हैं हाथ में। मंदिरों के शिखर देखिए, हम्म विमान देखिए, वो गर्भगृह को गर्भगृह क्यों कहते हैं? हम्म हम्म हर चीज के पीछे कहानियां हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है वो कहानियों में बुनी हुई है। हम्म हम्म। आज जिसे हम बहुत एक रेस लगी है उसे मिथोलॉजी कहने के लिए। और मैं लोगों को बोलते बोलते थक जाती हूँ कि मिथोलॉजी नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि संस्कृत का शब्द है सत्य और मिथ्य। मिथ्य का मतलब है जो झूठ है। बिल्कुल। तो जो हमारी संस्कृति के हैं उन्हें अपनी संस्कृति की कोई भी पुरातत्व की कहानी हो, चाहे पुराणों की कहानी हो, चाहे इतिहास हो, कभी भी मिथोलॉजी नहीं कहना चाहिए। स्पेशली इतिहास को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इतिहास हम दो मानते हैं, रामायण और महाभारत। तो इनको तो हमें मिथोलॉजी कभी नहीं कहना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं देखती कहना हूँ चाहिए। कि बहुत लोग इसे इस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल। डाउनग्रेड करते हैं, क्योंकि मिथोलॉजी तो कोई भी कहीं भी बहुत सारी हैं। कोई भी ऐसी बात जिसका तथ्य जो सत्य की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, उसको कहता है ये तो मिथोलॉजी है, मतलब आपने उसे डिस्कार्ड कर दिया। इमेज डिस्कार्डिंग है। यस। हाँ ये भी पता है, ये एक अपमान है। हाँ, ये अपमान ये है। बिल्कुल वैसी वाली बात है कि आपने रशिया नहीं देखा, हम्म तो क्या रशिया है नहीं? आपने ज़ीब्रा आज तक नहीं देखा। तो ज़ेब्रा नहीं है क्या? नहीं है। क्योंकि ये वही आप, बात है। और ह्यूमन दृष्टि तो बहुत सीमित है। हम्म हम कितना देख सकते हैं, कितने मीटर तक की विजिबिलिटी हमारे पास है। हम्म। हमारा विजन बहुत सीमित है। आपने जिराफ नहीं देखा, आपने ज़ीब्रा नहीं देखा, तो ये मिथ्य हो गए, है ना? अभी कुछ समय पहले मुझे मेरी नानी एक किस्सा बताती थी कि अगर तुमने कुछ पढ़ा, कभी भी उसे डिस्कार्ड मत करना। क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी, तो रामायण को यह कह कर के उसका मज़ाक उड़ाया जाता था, ये कह के उसे मॉक किया जाता था कि हाँ, हाँ, कभी कोई प्लेन देखा है? प्लेन इन द सेंस कि कौन-सा विमान है जो उड़ के जाता है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, राइट? सो ये उनको कहा जाता था कि इसमें झूठ लिखा है, क्योंकि कोई उड़ने वाली चीज़ तो होती नहीं। आज चैलेंज है मेरे घर के छत से, आप 5 मिनट ऊपर आँख करके देख लीजिए, आपको इतने विमान क्रॉस करते दिखेंगे, और इस हाइट पे
क्रॉस करते दिखेंगे that you can read which airline it is and how many engines it has. You can know by the sound it makes. You can see it with your eyes. Imagine. So she said that in my own lifetime I have seen from no viman to the skies dotted with vimans. And she said, so don't discard anything. And anybody who tells you that this cannot exist, it's a matter of time that it'll start existing. अब हमें ये बताइए, as a female solo traveler, what is the biggest challenge you ever faced? जब मैंने ट्रैवल करने के बारे में सोचा तो सबसे पहला जो बैरियर आता है वो आपके परिवार से आता है। अच्छा। ये बात लगभग आज से 1 दशक पहले की है। आप जब एकदम यंग होते थे तो परिवार में ये वो दौर था जब महिलाएं अकेले यात्राएं नहीं करती थी। मतलब ये मैंडेट था कि घर में या तो पिताजी साथ में जाएंगे या तो भाई साथ में जाएगा। इनफैक्ट मैं एक आम भारतीय इंसान की ही बात करूं, That is very different. बिल्कुल। 100% different. तो ये वो समय था कि जब महिलाएं अकेले यात्राएं नहीं हाँ, करती थी। हाँ, हाँ। और जब मैंने अकेले यात्राएं करने के बारे में बताया तो सबसे पहले घर में इसका विरोध हुआ। और वो विरोध आज समझ पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और क्योंकि आपका परिवार जब ये विरोध करता है बच्चे को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को अकेले बाहर जाने से उस समय, तो आउट ऑफ कंसर्न ज्यादा होता है। Concern, yes. ऐसा नहीं है कि वो उसकी प्रगति में बाधक हैं, Yeah. वो अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, लेकिन वो उस अनहोनी से डरते हैं Yeah. कि जो शायद जीवन भर के लिए एक स्कार छोड़ जाए उसकी जिंदगी पर। Yes. तो वो वाला एक फियर कॉन्स्टेंटली उन लोगों के साथ चलता है, बी दे आर योर पेरेंट्स और योर एल्डर सिस्टर्स और ब्रदर्स। तो इट वाज वेरी मच देयर। लेकिन एक पढ़ा लिखा लिबरल परिवार था, तो माय फादर सपोर्टेड, एवरीवन वाज बिट स्केरी, बट ठीक है तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो करो। लेकिन बहुत उस पे कोई कंडीशंस लगाए गए? नहीं, कंडीशंस तो नहीं लगाए थे, लेकिन सुरक्षा सच में बहुत बड़ा सवाल था। तो आपको जैसे नियम ये होता था कि रात होने से पहले, शाम को 6 बजे से पहले आपको घर के भीतर आना है। तो वो लागू होगा आपके ट्रैवल में भी, कि आप कहीं भी शूट कर रहे हैं, लेकिन आप शाम होने से पहले आप जहाँ होटल में रुके हैं, जहाँ भी आपका स्टे, आप वहाँ वापस आ जाएं, सुरक्षित एनवायरनमेंट में आ जाएं। तो उसको हम फॉलो करते थे, इनफैक्ट आज भी करते हैं। और वो करना आसान भी है क्योंकि हम फोटोग्राफर हैं। तो फोटोग्राफर्स की दुनिया सूर्य भगवान के साथ चलती है। करेक्ट। तो हम शूट करते हैं और जैसे ही सूरज छुपने लगता है हमारा भी दिन खत्म होने लगता है। तो सूर्य नारायण यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी आर लकी, हम सूर्य के देश के लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड। हमें ठंडी सर्द बड़े दिन या बड़ी रातें नहीं झेलनी होती, हमें डिप्रेशन नहीं झेलना होता। 6 महीने की रात और 6 महीने का हाँ, दिन, नहीं, जिससे SAD हो जाता है, which is seasonal affective disorder. बिल्कुल बिल्कुल। It's quite a serious, इन लोगों को समझ में नहीं आता जब हम लोग जो बात करते हैं कि वेस्ट के लोग कितना डिप्रेशन से गुजरते हैं। बिल्कुल, आप उनको जब नजदीक से देखेंगे तब जानेंगे कि हमें जो चीजें बस ऐसे ही सहज उपलब्ध हैं, ये जो भी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, वो सब नेमतें हैं। सनातन संस्कृति प्रकृति के उपासक है। उन्हीं की पूजा करते हैं। आप जल चढ़ा रहे हैं, क्या है, हर रोज अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि भगवान भास्कर आपके यहाँ उदय हुए हैं। ये नहीं है कि इट्स अ संडे, लेट्स गो आउट, क्योंकि हफ्ते में एक दिन सूरज निकला है। नहीं, हमारे यहाँ रोज निकलता है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी नेमतों को सर माथे लगाते थे हमारे पूर्वज। हम कहीं बीच में भूल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के नजदीक, हो सकता है अब क्या है, अब दुनिया प्रकृति के नजदीक ले जाने का आह्वान कर रही है। SDG गोल्स एंड दिस एंड दैट, सस्टेनेबिलिटी। हमारी तो सस्टेनेबिलिटी हमेशा से रही, कल्चर का पार्ट रही है, हमारी जिंदगी का हिस्सा रही, हमारे जीवन का हिस्सा रही। आप देखिए, हर देवी या देवता के साथ एक जानवर है, उनके साथ एक फूल है, उनके साथ एक एरिया है। एरियाज इन उनका कोई जगह होती है, उनका कोई एक सीजन है जिस सीजन में उनकी पूजा की जाती है। जैसे चतुर्मास में विष्णु जी की पूजा की जाती है, और भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे चतुर्मास में ही आपका सावन आता है, फिर उसके बाद आपका श्राद्ध आएगा, फिर उसके बाद आपकी दिवाली आएगी। तो ये सारा एक सीजन डेडिकेटेड है एक पूजा के लिए। नवरात्रि है, उसमें देवी की पूजा की जाती है ना। तो हम ये देखते हैं कि सीजन डेडिकेटेड, ग्रेन्स डेडिकेटेड, और इसी सब चलते हमने ये देखा है कि हमारा कल्चर बहुत विविध और रिच है इन्हीं सब चीज़ों से। आज जो आपने जो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है वो भी शायद किसी देवी या कोई एरिया या कहीं
उसकी भी मान्यता होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये महाराष्ट्र की साड़ी है और हिमरू एक हम्म। ट्रेडिशनल वीविंग आर्ट फॉर्म है जो महाराष्ट्र से आता है। और समर है तो ये कॉटन सिल्क है। और साड़ियों की भी अपनी बड़ी महान परंपरा है हमारे देश में, और इसका संबंध कला से है, हमारे मॉन्यूमेंट से भी है। हम हर राज्य की अपनी साड़ी है, अपना एक वीविंग स्टाइल है। इनफैक्ट मल्टीपल, जैसे यस यस, मल्टीपल ऑफ कोर्स, मोटिव्स, पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम जा रहे हैं किसी मॉन्यूमेंट को देखने, अगर हम जैसे गए हैं पाटन, रानी की वाव देखने, वो अपने आप में इतनी सुंदर संरचना है। उसकी एक एक बावड़ी है जिसे किसी रानी ने बनवाया था काल के समय में, और उसकी दीवारें बहुत सुंदर मूर्तिकला से सजी हुई हैं, बहुत सुंदर पैटर्न से सजी हुई हैं। तो वो जो एक संरचना है वो आपके मन में बैठ जाती है, हमेशा याद रहेगी आपकी मेमोरीज में। लेकिन अगर आप चाहें भी तो उसे अपने साथ घर नहीं ला सकते, उस संरचना को। लेकिन उसका एक लघु रूप आप अपने साथ ला सकते हैं। उस संरचना की जो दीवारें हैं उन पर एक पैटर्न्स बने हैं। करेक्ट। वो पैटर्न्स जो कलाकार हैं, जो हाथों के दस्तकार लोग हैं, उन्होंने उन्हें साड़ियों पर उकेरा है। तो वो पैटर्न आपको मिलता है पाटन की पटोला साड़ी में। पटोला एक ऐसा वीव है जो आप पटोला खरीद नहीं सकते हैं, उसको बनवाना होता है। हाँ, पाटन में दो ऐसे ट्रेडिशनल वीवर्स हैं जिनको जो आज भी वही पारंपरिक रूप से गांठे लगा लगा कर उस साड़ी के पैटर्न बना रहे हैं, और 6 महीने का समय लेते हैं। आप आज उन्हें ऑर्डर देकर आएंगे, वो 6 महीने में उसे बुनेंगे, फिर आप तक आपकी साड़ी पहुंचेगी। बहुत सुंदर। तो मेरे लिए किसी भी प्रदेश की साड़ी उस जगह पर जब मैं जाती हूँ तो वो मेरे भीतर कहीं रह जाता है, वो जगह, वो कल्चर। और मैं अगर उसे अपने साथ लेकर आना चाहूँ और हमेशा रखना चाहूँ अपने साथ, तो साड़ी से बेहतर मुझे और कोई चीज़ नहीं मिलती, साड़ी या कपड़ा कोई उस ट्रेडिशन का। एक्चुअली ये आप लपेटते हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो शॉल हो, आप उस परंपरा को लपेटते हैं। करेक्ट। और जब आप किसी चीज को अपने इर्द गिर्द लपेटते हैं तो वो एक अलग इमोशन होता है। करेक्ट। तो हमारी साड़ियाँ, हमारे वीव्स, हमारे शॉल्स, हमारे वुलन्स, हर राज्य आपको कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो आपके साथ हमेशा चलता है। यही भारतीयता है और यही वो गर्व है जो हम करना चाहते हैं। आज मैं गर्व करती हूँ कि मेरी वार्डरोब में भारत के हर प्रदेश की ट्रेडिशनल साड़ी है, और मैं बहुत सहेजती हूँ इन्हें। और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें ना अब युवा भी बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको शेयर करना चाहती हूँ एक अनुभव, अभी बहुत ही रिसेंट अनुभव मेरा है। मैं डॉक्यूमेंट कर रही थी बनारस की साड़ी को। यूनेस्को ने साड़ी क्लस्टर्स में भारत की कई साड़ीज को जगह दी है हेरिटेज में। तो मैं बनारस, मेरा कई बार जाना हुआ है, और मैंने वीवर्स के बीच में आज से 10 साल पहले का समय भी देखा है कि जब वीवर्स हाथ से काम कर रहे हैं सारे, और उनके युवा नहीं है उस पिक्चर में, बड़े बुजुर्ग जो कि ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और युवा नहीं उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं मन में ये दुख भी होता था कि ये आर्ट फॉर्म खत्म होने की तरफ है, और जो वीवर्स भी हैं वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ पाया नहीं उस कला से। आपको लगता है कि वीवर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि बिचौलिया पैसे से? यस, आई वाज कमिंग टू दिस कि वो उनकी मेहनत का सारा फल जो मिडिल मैन था वो खा जाता था। वीवर हमेशा बेचारा हैंड टू माउथ, और एक स्थिति ऐसी आती थी कि वो अपनी उस कला को हाथ जोड़कर मजदूरी करने के लिए पहुंच जाता था, बंद कर देता था, और कहीं पर क्योंकि उसे घर चलाना है, उसे बच्चे पालने हैं। तो मैंने ये दौर देखा वीवर्स का। और अब अभी रिसेंटली मैं 1-2 महीने पहले गई हूँ और वापस से मैं उन वीवर्स में गई हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने ट्रेडिशनल लूम पर साड़ी वीव कर रहे हैं, और उसके बाद के जो प्रोसेस है जो कि पहले मैनुअल होते थे कि फिनिशिंग करना है, थ्रेड्स कट करने हैं, वो सारे ऑटोमेशन पे आ गए। एंड द यंगस्टर्स, द यंग बॉयज ऑफ द फैमिली, दे आर ऑपरेटिंग इट वेरी क्विकली। जो उनका समय बचा रहा है, जो युवाओं को उस कला से जोड़ रहा है। समय के साथ इवॉल्व हम सबको होना चाहिए, और यही वो एक तरीका है जो उसे जिंदा रखेगा, वरना
वो मर जाएगी, वो आर्ट फॉर्म खत्म हो जाएगी। एक्चुअली आर्ट फॉर्म इसलिए भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसे पेट्रनेज नहीं मिलती है। यस। एंड इसीलिए अगर आप देखिएगा, अब जैसे कि रानी की वाव की आपने बात की, बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह है। आप एंड उसके ऊपर जो मूर्तियां बनी हैं, जो देवी देवता जो बने हैं, जैसे महिषासुर मर्दिनी है, कल की भगवान है उस पे बने हुए, आप उनकी इंट्रिकेट कार्विंग देखिए। एक बात बताइए, बहुत सारे बावली और बहुत सारे वाव बने हैं, और आज के दिन भी हम डैम्स बनाते हैं या तरह तरह की हम चीजें आज भी बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, उस जमाने की चीज और आज के जमाने की चीज किसमें खूबसूरती ज्यादा है? ऑफ कोर्स उस जमाने की चीजों में। और पिछले ज़माने की चीज़ों में खूबसूरती इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो भले ही बजट पे काम करते थे, परंतु अगर उनके गाँव में एक टैलेंट था, तो वो उस टैलेंट को निखारने के लिए उनको ये अपॉर्च्युनिटी बना करके देते थे। क्योंकि मैंने बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ वग़ैरह में लोगों से बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हमारे यहाँ का, जैसे साउथ में टेम्पल ज्वेलरी होती है या कहीं पे ये है, ऐसा नहीं था कि राजा महाराजाओं को जबरदस्ती खरीदने की जरूरत है। कितना कोई गहना खरीदेगा, कितने वो, इतना तो शौक भी नहीं होता कुछ कुछ को, परंतु वो खरीदते थे क्योंकि अगर वो पेट्रनाइज नहीं करेंगे अपने लोकल ज्वेलर को, तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर राजा पेट्रनाइज करता है, तो फिर सब पेट्रनाइज करेंगे, क्योंकि राजा ने पहना है, देन इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू, इट इज समथिंग ऑफ, जैसे कि आज के ज़माने में हम सेलिब्रिटीज को एंडोर्समेंट, कुछ जैसे हैं एंडोर्समेंट के लिए पैसा दिया जाता है, तो पहले ज़माने में राजा महाराजा एंड द एलीट क्लास यूज्ड टू हैव दीज एज पेट्रनेज, एंड आज के ज़माने में ये बेचारे पैसे दे रहे हैं कि भाई हमारा चीज़ प्रमोट कर दो, विच इज़ द रॉन्ग वे अ सिविलाइजेशन शुड बी run. A civilization should run with talent being given the due and patronage that it requires to flourish, right? Otherwise arts will disappear. And सर्टेनली। एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, फ्रांस के बारे में है कि फ्रांस बुरे राजनीतिज्ञ को झेल सकता है, मगर बुरे डिजाइनर्स को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो समाज ऐसा है कि वो हाँ, बुरी लीडरशिप तो फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बुरे डिजाइनर्स बर्दाश्त नहीं करेगा। तो that shows really how much they are into design and art and perfumes, they're so much into their perfumes. Yeah. हम लोग भी, सारे लोग Hmm. अगर देखें तो हम भगवान को इत्र चढ़ाते हैं। Hmm. भगवान बुद्ध को, आज अगर हम महाबोधि मंदिर जाते हैं, वहां पर आप महाबोधि वृक्ष, आप सोचिए 2600 साल से कोई पेड़ जिंदा है, ये साधारण बात है। कहाँ है दूसरा महाबोधि वृक्ष जैसा कोई और वृक्ष पूरी दुनिया में? क्या है? ये कितना अद्भुत है। सिंदूर, वृक्षों पे सिंदूर चढ़ाना, धागे बांधना, उनकी पूजा करना। इनफैक्ट प्रकृति की उपासना से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव एक बहुत अच्छा सा, जो मैंने बहुत नजदीक देखा, रहकर देखा। मुझे अवसर मिला गोंड आदिवासी समाज के बीच जाकर अध्ययन करने का। अच्छा, कैसा तो एक कॉफी टेबल बुक बनाई, और कोविड टाइम में जब सारी दुनिया डर के घर के अंदर घुसी हुई थी, तब मुझे अवसर मिला कि मैं गोंड आदिवासियों के एक गांव में जा बुलाया गया मुझे, और एक पुस्तक लिखनी थी उनके समाज के बारे में। 1 साल मैंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उनकी परंपराओं का पूरा अध्ययन किया। उनके गुरु होते हैं पारिकुपार लिंगो, गौंड समाज के। गौंड समाज यानी कि वनों पर आश्रित समाज, वनवासी हैं। वो वनों के रक्षक भी हैं और वनों के भक्षक भी हैं। हाँ। ये कितनी बारीक सी लाइन है कि वो वनों से ही लेंगे और उन्हें ही बचाएंगे। तो कैसे होगा ये? तो उन्होंने अपना जो गोत्र सिस्टम डिजाइन किया, वो इस तरह किया कि, और उनको इतना अध्ययन था, उनको ज्योग्राफी का पूरा आइडिया था। कितने द्वीप हैं, कितने उपमहाद्वीप हैं, कितने नक्षत्र हैं, उनको सब पता था। वो उनके गीतों में है। तो उन्होंने गोत्र बनाए, और हर गोत्र को एक पशु दिया, एक वृक्ष दिया, एक पक्षी दिया। वो उस गोत्र का टोडम कहलाया, पहचान बना। और केवल वही एक गोत्र होगा जो उसका भक्षण नहीं करेगा। अच्छा। हाँ। और उनके सरनेम के साथ वो टोडम वर्ड जुड़ा होगा। अच्छा। और बाकी सब उसका भक्षण करेंगे।
ये कितनी अद्भुत बात है कि आपने हर चीज को कैटलॉगिंग की, उन्होंने उसका वर्गीकरण करके प्रकृति के सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी उन सबको डॉक्यूमेंट किया है और लोगों को जिम्मेदारी दी है कि तुम इसका सेवन नहीं करोगे, दूसरा गोत्र कर लेगा, दूसरा गोत्र किसी और चीज का सेवन नहीं करेगा मगर ये कर लेगा, तो इससे आप प्रकृति को बचा पाए। हाँ, क्योंकि वो वनों से रिलेटेड थे, वन के थे, जंगल से बिल्कुल। रिलेटेड थे, तो उन्होंने जंगल का किया। आपको पता है जो हमारे जो रेगुलर जो गोत्र होते हैं, जितने भी जो हमारे ऋषि हैं उनके गोत्र हैं, उनसे एक चीज रिलेटेड है। जैसे हम गोत्र मानते हैं और वेद मानते हैं, तो आप किसी से भी पूछेगा, ये तो ब्राह्मणों में होता है और बाकियों का भी अलग अलग होता है कि किस देवी को मानते हैं किस में। तो जैसे कि एक गोत्र है, जैसे भारद्वाज ऋषि का जो गोत्र है, ही वॉज नोन टू बी अ लिंग्विस्ट अमंगस्ट अदर थिंग्स। बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे लैंग्वेज की संरक्षण की, जो संस्कृति में जो चीजें होती हैं उसमें ऋषि भी एक जैसे पराशर मुनि हुए, पराशर ऋषि हुए, तो पराशर ऋषि ऋषि ने पेड़ों पे पुस्तकें लिखी हैं। और आप ऐसे ऐसे देखिएगा तो ऐसे भी अब जेमिनी ऋषि हुए या और भी जो ऋषि हैं, किसी ने एस्ट्रोलॉजी पे लिखा है तो वो उसकी मतलब संरक्षण करते हैं। वैसे ही इन्होंने भी शायद वैसे ही कॉपी किया, तो बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ भी जैसे ऋषियों का होता है तो बहुत ही सुंदर है। और इस टाइप का जो टोटेम कल्चर है, हो सकता है ये पुराने जमाने में था या हमारे ही लोग वहां थे। आप एंशिएंट कल्चर्स में जरूर देखिएगा। और आपने, मुझे याद है अमेरिका की बात की, तो अमेरिका में आपने कहा कि वो राइट ब्रदर्स का ये दिखा रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज दैट्स नॉट द नेटिव लैंड। एक्चुअली So if they had to show the ancient native, they could have done that, but they don't show that because it's not who they are. They are people who have conquered a race. They have conquered a land, and those people are now not there anymore. I mean, बिल्कुल। if they are there, then they don't have a voice. We are a people who have resisted this for centuries, right? So we know, we conserve and we protect what we have. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अकेले ट्रैवल करती थी तो आपने लॉजिस्टिकल हर्डल्स क्या फेस किए, एंड स्पेशली एज अ वुमन ट्रैवलर डिड यू फील स्कैर्ड एट सर्टेन टाइम्स? क्या आपने मतलब एनी एक्सपीरियंस दैट वाज स्ट्रेंज? एक डर तो हमेशा साथ में ट्रैवल करता था। इनफैक्ट इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई है। आज से लगभग 1 दशक पहले थॉमसन राउटर फाउंडेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। सम रैंडम 550 पीपल से पूछा था कि फॉर women ट्रैवलर व्हाट आर द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज, डेंजरस कंट्रीज फॉर women ट्रैवलर्स। हाँ, और उन 550 लोग, कोई भी रैंडम, ऑल ओवर ने द वर्ल्ड था कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड था। अच्छा। और कौन सी कंट्रीज वनरेबल है महिला यात्रियों के लिए, इस पर वो सर्वे था। तो दुख की बात ये थी कि उस सर्वे में हम भी मौजूद थे कि हम, हमारे देश को भी वनरेबल घोषित किया था उन लोगों ने, और हम सीरिया और अफगानिस्तान की कतार में थे, अच्छा। जबकि ये सच नहीं है। तब भी नहीं था। हम सीरिया नहीं थे, हम सीरिया कभी नहीं हो सकते, हम अफगानिस्तान कभी नहीं हो सकते। हमारा देश की के डीएनए में वसुदेव कुटुंबकम है। तो मेरे लिए एज अ ट्रैवलर ये एक स्लैब था कि कोई रैंडम 550 लोग हमारे देश के टेम्परामेंट को डिसाइड नहीं कर सकते और स्टैम्प नहीं कर सकते। ये मेरा देश नहीं है। मेरा ये विश्वास था कि ये मेरा देश नहीं है। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो। अच्छा। एंड आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट। हम बहुत सारे मंच पर जाते हैं, तो मैंने हमेशा वहाँ उन मंचों से ये बात कही कि नहीं, थॉमसन राउटर एसोसिएशन के जो ये सर्वे है ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो है, ये सच नहीं है। और मैंने ट्रैवल किया और डिफरेंट स्टेजेस में ट्रैवल किया मेरी लाइफ की। इवन आई ट्रैवल्ड इन माय प्रेगनेंसी। मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, डिस्पाइट द फैक्ट दे नो कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं देने वाली हूँ। मैं वापस लौट कर भी कभी ऐसा नहीं होने वाला कि मैं उन्हें होस्ट करूंगी। लेकिन लोग whatever they have, they offer. Where do you think that this generosity comes from? हमारी अगर परंपराएं देखें तो सनातन संस्कृति में हमेशा देने पर जोर रहा है। हमने ज्ञान बांटा है, हमने प्रेम बांटा है। हमारी जो माएं होती थी वो खिलाकर ही खाती थी। आज का जो नया फेमिनिज्म है वो पता नहीं किस बात की जंग लड़ रहा है ना। ये उस माँ से कभी किसी ने पूछा कि आपकी खुशी किस में है? हाँ। उसकी खुशी इसी में है कि वो एक एक आदमी को पकड़ के पहले उसका पेट भरा दे, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है।
वो जो सुख है वो आप मटेरियल फॉर्म में आप उसे कैसे गिनिएगा? तो हमने हमेशा दिया है, इसीलिए हमारा ज्ञान अब देखिए जब ब्रिटिशर्स आए, एक तरफ उनका स्पष्ट बिजनेस का विस्तार था कि भारत एक को के रिसोर्सेस को उसे लूटना था और वही किया उन्होंने, पर उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग आए जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लूट रहे थे, ऑफ कोर्स जिसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की नहीं जाती की है, गई है और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी आया और ये मैं अब महसूस करती हूँ कि जब मैं अगर किसी चीज के बारे में पढ़ रही हूँ एज अ कल्चरल कंजर्वेशनिस्ट, हम जब प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम कुछ कॉफी टेबल बुक बनाते हैं, तो उसका इतिहास अगर मुझे जानना है तो मुझे रेफर करना पड़ता है, और दुख की बात यह है कि हमें फॉरेन फिलोसोफर्स को पढ़ना पड़ता है आर्काइव्स में जाकर, और जब आप उनका प्रीफेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई इन्होंने हमारे साहित्य को पढ़ा, उसे डिकोड किया, अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, और फिर अपना ठप्पा लगाया कि येल यूनिवर्सिटी का ये अब कॉपीराइट है। हाँ, अरे ये चोरी है, हाँ, इसकी इसकी रुदात फरियाद कहाँ की जाए? हम्म, और इंडियंस क्योंकि क्या थे, वो ऋषि थे, वो ऋषि मुनि थे, वो आश्रम में रहते थे, वो ऐसे अपनी कला को के प्रति इतने समर्पित लोग थे कि उनके दरवाजे पर जो भी आया, उसने अगर कहा कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसके साथ शेयर किया। इसीलिए हमारा ये जितना भी ओरल चीजें हैं, जो हमारा इंटेलेक्चुअल एसेट था, एक बात बताइए, आप कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं? मोर देन अ डिकेड। मोर देन अ डिकेड। सो आपने पिछले डिकेड में क्या चेंजेस दिखे? लाइक लेट्स से इन दैट डिकेड टू नाउ, व्हाट चेंजेस हैव यू नोटिस्ड? हाउ हैव थिंग्स इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड? 2-3 थिंग्स आई हैव नोटिस्ड। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ फीमेल, क्योंकि ये शायद विषय मेरे से पर्सनली जुड़ा हुआ है, तो सेफ्टी वाज अ बिग चैलेंज। महिलाएं अकेले यात्राएं नहीं करती थी। हमने जब यात्राएं शुरू की तो हम पेपर स्प्रे कैरी करते थे, और हमेशा एक अलर्ट मोड में ट्रैवल करते थे कि कुछ भी हो किसी भी सकता है। परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। लेकिन अब मैं ये पाती हूँ कि अब महिलाएं बिंदास होकर यात्राएं करती हैं, अकेले यात्राएं करती हैं। डिफरेंट एज ग्रुप की महिलाएं आपको यात्राएं करते मिल जाएंगी। अभी मैं नालंदा में ट्रैवल कर रही तो मैंने देखा देयर वाज अ ग्रुप ऑफ लेडीज, young ladies of 60 to 70 years old, and they were enjoying thoroughly. So I just saw them. I was so happy to see them. I waved and I said, "Oh, ये गैंग ऑफ गर्ल कहाँ से आ रहा है?" तो हम घूमने निकले हैं बिहार। तो ऐसे अब डिफरेंट एज ग्रुप की महिलाएं, वो नोशन ही खत्म हो गया कि महिला के साथ एक पुरुष को साथ में जाना है। और ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, इसके लिए बहुत सारे काम किए गए। आज अगर आप अकेले ट्रेवल कर रही हैं ट्रेन में, द मोमेंट यू विल बोर्ड द ट्रेन, two women constable will come to you, ask you, आप मिस सो एंड सो, उन्हें पता है आपका नाम, आपका बर्थ नंबर, और वो आपको पूरा एसओपी समझाएंगी कि किसी भी आपात परिस्थिति में अगर आपको सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकती हैं। ये कितना बड़ा भरोसा है एक अकेली महिला यात्री के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, अगर कुछ समस्या आएगी तो विमेन कांस्टेबल से मैं संपर्क कर सकती हूँ। ये ट्रेन में होता है? ये ट्रेन में होता है, बिल्कुल। अच्छा। और यही बदलाव मैंने महसूस किया है। अच्छा। मैं भुवनेश्वर से आ रही थी, द मोमेंट आई एंटर्ड इन द ट्रेन, दो कांस्टेबल यंग लड़कियां देखकर मतलब सुखद है उनको देखना। वो आई हैं, मुझे एसओपी समझा कर गई हैं, और जरूरत नहीं पड़ी है इसकी, लेकिन सिस्टम में ये बदलाव आया है, विमेन सेंसिटिव। एंड कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई स्ट्रेंज घटना घटी, जैसे आपके पैसे खत्म हो गए या कुछ? तो फिर लाइक हाउ हैज मनी इम्प्रूव्ड, लाइक ट्रांजैक्शन? ये तो आपने सेफ्टी की बात की। ट्रैवल में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कहीं जो बुकिंग होती है वो कैंसिल हो जाता है, या कुछ पैसे, यू रन आउट ऑफ कैश और यू रन आउट ऑफ चेंज, देन हाउ डिड यू मैनेज? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, हम तब भी यात्राओं में थे। अच्छा। और हमने बड़े आराम से यूपीआई से ट्रांजैक्शंस किए, तो कैश खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से कर सकते हैं। Correct. So that's one change that you've really changed, seen in the life. हाँ. दूसरी बात, हेल्थ। अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप हेल्थ सेंटर में जाइए, आपको ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको दवाई नहीं मिलेगी। लद्दाख जब हम ट्रैवल करते तो लद्दाख में एक कॉमन फैक्टर आता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाँ, करेक्ट।
अगर आपने प्रॉपर एक्लेमेटाइज नहीं किया है तो आपकी बीमार होने की संभावना बड़ी प्रबल है। हो जाते हैं, कॉमन बात है। तो उस क्या करना है, कुछ नहीं, आप जाइए हेल्थ सेंटर में, वो आपको मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन देंगे, ऑक्सीजन भी दे देंगे, ठीक हो जाएंगे आप। तो आप कहीं पर भी ना अकेले नहीं हैं, सिस्टम आपके साथ है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या आपको क्या मन से अभिमान नहीं होता कि मैं भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है। करेक्ट। मैं कहीं विदेश में भी अगर यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता है। मेरा जो इंडियन कॉन्सुलेट है ना, वो है मेरा रखवाला। कहीं कुछ आपात स्थिति आएगी तो दे आर देयर टू सपोर्ट। और ये प्रूव भी हो चुका है, कितनी ही बार प्रूव हुआ है कि लोगों को एक्सकेवेट भी कराया जाता है, और भारत सरकार कितनी स्ट्रांगली उन सब चीजों को हैंडल करती है। हाँ। तो हम सब में वो एक सेंस ऑफ प्राइड भरा गया है पिछले 10 साल में। नॉट ओनली दैट, मैंने एक केस पढ़ा था पाकिस्तान में, इंडियन लड़की की शादी हुई थी एंड शी वाज अनहैप्पी इन दैट मैरिज, सो शी रैन अवे फ्रॉम बिकॉज शी वाज बीइंग अब्यूज्ड. Do you know where she went and stayed? She stayed at the Indian consulate in Pakistan for many, many days. उस समय आई थिंक सुषमा स्वराज जी थी एंड उन्होंने कहा कि भारत की बेटी यस, हमारी बिल्कुल बेटी है, बिल्कुल। एंड काउंसलेट को सीधे मैसेज किया था that she will stay there as for as long, and obviously the ambassador there worked very smartly and diligently to fight her case. उसका पूरा केस लड़ा गया. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि कल्चरल कंजर्वेशन मेरा कोर काम है, हम हिमालयाज में डॉक्यूमेंट करते हैं। कभी कुछ मेरा अनुभव रहा है, उत्तराखंड में भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए। तो हम गांव में जाके उस समाज के बारे में डॉक्यूमेंट कर रहे थे। जौनसार बाबर का इलाका है। मैं उस गांव में कहाँ रहूंगी, जब मैं शूट करने गई हूँ तब तक मुझे नहीं पता था कि आज शाम को मैं रुकने कहाँ वाली हूँ। लेकिन मुझे ये भरोसा है, वही वसुदेव कुटुंबकम का, कि ऐसे नहीं है कि सड़क पे रात बितानी पड़ेगी। आप कहीं भी जाइए, पहाड़ों में, हिमालय में जाइए, आप गांव में पहुंचिए, जहां रात हो जाए वहां आप उस गांव के प्रधान के घर में चले जाइए। अच्छा. और उसे बताइए कि मैं यात्री हूँ, हाँ. और मुझे रात में ठहरना है। वो आपके रहने का बंदोबस्त करेगा। वाह. कहीं भी आंखें बंद करके, मेरे वर्ड्स लिख लीजिए आप, आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। खाना भी खिलाएगा। गांव में ना खाने की कमी है ना आराम की। गांव वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सुन करके. मैं आना चाहती हूँ आपके इंस्पिरेशन पे. सो आई वांट टू नो व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू, और वाज देयर, आपने ये तो बोला कि आपकी इंस्पिरेशन एक चाइनीज जो थे वो थे, इसके अलावा who else has been your inspiration, let's say, to even, because I believe you mentioned about coffee table books, how many coffee table books have you written? अभी तक मेरी टोटल जमा किताबें लगभग 13 हो चुकी हैं, जिसमें कई सारी कॉफी टेबल बुक्स हैं। हाँ. और इलस्ट्रेटेड मोनोग्राफ्स हैं। हमने एक प्रोजेक्ट किया था परम तपस्विनी, हाँ. जो कि भारत की 12 महान महिलाओं की खोज थी। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो करने का अवसर मिला। और उस प्रोजेक्ट में मैंने 28,000 किलोमीटर यात्राएं की। Wow. And that was the time when I was most vulnerable, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। और जब वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो शायद मैं नहीं कर पाती कि कैसे परिस्थितियां होंगी, बच्चा है छोटा, मैं कैसे ट्रैवल करूंगी। लेकिन हमारा जो परिवार सिस्टम है, हमारा जो संयुक्त परिवार सिस्टम है, उसने सपोर्ट किया और मैं किसी तरह वो प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तुत हुई। और मैंने भारत में 28,000 किलोमीटर यात्रा की, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। तो बच्चा आपके साथ चला कि घर पे छोड़ घर के पे गए? छोड़ा। हाँ, ये बहुत वो होता है कि बच्चा घर पे रहेगा. घर हाँ. पे छोड़ा। और मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन ने, मेरे पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। और मैंने लद्दाख से कन्याकुमारी और नागालैंड से गुजरात, देश भर में यात्राएं की। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी महान महिलाओं से मिलने का अवसर मिला जो कि वॉरियर्स थी। मैं यही पूछने वाली थी कि अपार्ट फ्रॉम दैट हु एल्स हैज इंस्पायर्ड यू, बिकॉज़ यू रिटन सो मेनी बुक्स. हाँ. नई माँ, जो कि आप समझ सकती हैं कि जब आप बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आप इमोशनली बहुत वनरेबल होते हैं, आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर आप जा रहे हैं काम करने, तो आपको ईश्वर ऐसे लोगों से मिलवाता है जिनकी जिंदगी एक प्रेरणा है। हाँ. तो ऐसे कौन थी? कौन सी नहीं थी, 12 महिलाएं जिन्होंने केवल अपना जीवन नहीं बदला है। हम जरा सी परेशानी होती है और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन इन 12 महिलाओं में सबकी कहानी एक से एक जबरदस्त। लद्दाख में सवांग डोलमा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एसोसिएशन की विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी।
उन्होंने लद्दाख में सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारा काम किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारा काम किया, क्राफ्ट के लिए काम किया, उनके साथ उनका इंटरव्यू करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों से बातें करना, कई सारे लोगों से बातचीत करना, ताकि आपके पास दोनों पक्ष हो। एक पक्ष तो वो है जो सामने वाला स्वयं अपने बारे में बताता है, पर क्या वो कितना सही है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वहां से लेकर शुरू किया उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, महाराष्ट्र, सिंधु ताई सपकाल, जिनकी 150 बहुएं और 250 दामाद। एक ऐसी स्त्री जिसका अपना घर नहीं था, उसने इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों, अनाथ बच्चों को माई बनकर घर दिया। सबकी कहानी एक से एक इंस्पिरेशनल। और कैसे संभाला होगा भाई 150 बच्चों को, कैसे संभाला, हाँ सोचिए। हाँ। और ऐसे ही नागालैंड में लेंटिनाओ ठक्कर, पद्मश्री लेंटिनाओ ठक्कर, पहली नागा लड़की जो नागा पहाड़ियों से बाहर निकल कर आई। अच्छा। नागाज एकदम माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, बहुत डीप इंटीरियर्स में रहते हैं, वो मेन लैंड से दूर ही होते हैं। वो बाहर निकली, उन्होंने कस्तूरबा गांधी आश्रम गुवाहाटी में मिडवाइफ की ट्रेनिंग ली, नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, और उनको मिले श्री नटवर ठक्कर, अगेन पद्मश्री नटवर ठक्कर। वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो विद इन द कंट्री रहकर काम कर रहे थे। काका कालेलकर ने उनसे कहा कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो कि देश को बांधने का काम करें। आज जो नागालैंड हमसे जुड़ा है उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसको लगाया। तो लेंटिना और नटवर ठक्कर, इन्होंने भारत और नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन दिया। तो ऐसे लोगों की कहानी, उन्होंने सेवा की, नागाओं में विश्वास जगाना। वरना तो जो आदिवासी समाज है वो शहरी लोगों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। एक रिजर्वेशन होता है कि पता नहीं किस एजेंडा के साथ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका विश्वास जीतना, उसके लिए काम करना, ये सब उन लोगों ने किया। तो सबकी कहानियां संघर्ष से भरी हुई थी और अपने आप को पीछे रखकर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देश के बारे में सोचने वाली थी। जो लेडीज अकेली ट्रैवल करती हैं, जो यंग जनरेशन भी जो है, एंड आप उनको क्या एडवाइस दीजिएगा? बिकॉज नाउ यू आर वेरी सीजन्ड ट्रैवलर एंड यू ट्रैवल वाया ट्रेन्स, यू ट्रैवल वाया प्लेन्स। अगर कोई एडवाइस होगी तो आप क्या देना चाहेंगी उनको? देखकर खुशी होती है कि महिलाएं अब बहुत बड़ी संख्या में यात्राएं कर रही हैं और वो एंजॉय कर रही हैं। तो बहुत अच्छा है यात्राएं करना, लेकिन यात्राओं के करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल सेल्फी कल्चर बहुत है। हाँ। तो उसे करते हुए थोड़ी सी सेंसिटिविटी की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अलाउ नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पर आप चीजों को हैम्पर कर रहे होते हैं। तो उससे बचना चाहिए। साथ में बहुत बार क्या होता है, हम अननोइंगली हम सामने वाले को कैप्चर कर, हाँ, एक तो बिना पूछे हम उससे कैप्चर कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। दूसरा एक और बात है, जैसे कि हम फोटोग्राफर की भाषा में बहुत रोशनी को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, लाइट पोल्यूशन बहुत कहते हैं, ज्यादा, राइट? बहुत शोर होता है, उसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, और लाइट को लाइट पोल्यूशन कहते हैं। आप शहर से आ रहे हैं, बहुत सारे डायमंड्स और ब्रांडेड सामान पहने हुए हैं, और अब आप अगर रूरल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं कि चलो होम स्टे में रहकर आते हैं बुंदेलखंड के, और देखते हैं कि गांव की जिंदगी कैसी है, और आप इतने जैजी होके अगर वहां जा रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उनको छोटा महसूस करा रहे हैं। आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप इंजॉय करने जा रहे हैं उनके कल्चर को, उनकी दुनिया को, ना कि आप उन्हें छोटा महसूस कराने जा रहे हैं। तो वो छोटा ये तो आपका इंटेंशन नहीं है। हाँ। जब वो आपसे बात करेंगे ना, तो आपके शरीर के ऊपर ये जितने आडंबर हैं, फैंसी घड़ी, डायमंड्स, ब्रांडेड कपड़े, बहुत फैशनेबल कपड़े, जूते, महंगी गाड़ियां, तो उन्हें लगेगा कि वो कहीं आपसे कम है। जबकि ऐसा सच नहीं है, नहीं वो कम है, नहीं कम है। किसी कोई भी कम नहीं है। आप बाजार से ड्रिवन हो रहे हैं, हाँ। वो बाजार से ड्रिवन नहीं हो रहे हैं, वो ज्यादा ग्राउंडेड हैं, उनकी चीजें ज्यादा स्थायी हैं। तो हम कोशिश करें कि हम किसी को भरमाने तो नहीं जा रहे हैं ना, किसी को छोटा महसूस कराने तो नहीं जा रहे हैं। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल। मुझे ये देख के बड़ा अचंभा होता है कि आप कॉलेज में अपनी इंटरेस्ट का पढ़ने गए हैं कि आप कॉलेज में इन्फ्लुएंसर बनने गए हैं। बिकॉज इफ योर मेन एजेंडा इन कॉलेज इज टू गो देयर एंड बी एन इन्फ्लुएंसर, दैट मीन्स यू हैव टेकन द सीट ऑफ अ पर्सन हु इज जेन्युइनली वांटिंग दैट स्पेस टू स्टडी, एंड आइडली आई एम सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट दिस। आप कॉलेज पढ़ने गए हैं, वहाँ पे रील बनाने की मुझे नहीं लगता जगह है। This may be my personal opinion, but you're very right, very right. In fact,
अभी पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी भी हुई है भाषा के स्तर पे, क्योंकि ये बच्चे क्या है, ये अबोध है। मुझे इन बच्चों पर दया आती है। ये इन्फ्लुएंसर्स जो बीच में बहुत बड़े ब्लेंडर्स भी कर देते हैं और फिर अचानक से वो हॉट वाटर में भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं किया है। उन्हें लगा अरे वेस्ट में ये चल रहा था, अच्छा ये वाला स्लैंग चल जाता, ये कूल है, तो उन्होंने बिना दिमाग लगाए कॉपी पेस्ट किया है। उन्हें नहीं पता कि हमारा जो जो मानस है वो वल्गैरिटी को नहीं एक्सेप्ट करता। आप कुछ भी बोल देंगे नहीं चलेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं फिर आप औंधे मुंह गिरेंगे कि आपकी जो मानसिकता है वो रुग्ण हो रही है। आपको कमाना पड़ेगा, आपको अभ्यास से ही होगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप जाके किसी लायक बनेंगे। ये सारी चीजें तो आपको ये बता रही है ना कि डिग्री विग्री करने की क्या जरूरत है। आप कैमरा पे अच्छा बोल लेते हैं, नाच लीजिए, उल्टी सीधी हरकतें कर लीजिए और कुछ भी बोलने का साहस रखिए। आप कितना गंदा, कितना भद्दा शब्द आप कितने कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं इस कैमरा पर, ये सक्सेस की कुंजी है। आप ये बताइए, एक मुस्लिम होकर के आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत काम किया है, तो ये कहाँ से आई, ये रुचि कहाँ से आई, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? बिल्कुल, द्वंद की बात मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि एक मुसलमान होकर एक ट्रेडिशनल परिवार से आने के बाद, मैं काजी परिवार से आती हूँ, मंदिरों के स्थापत्य पर मेरा काम है, मैं डॉक्यूमेंट करती हूँ, उन्हें फोटो खींचती हूँ, तो कहीं कैसे करती हूँ। पहली बात, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि कला को धर्म के चश्मे से मत देखिए। कला किसी धर्म के से बंधी हुई नहीं है। अगर कला किसी धर्म से बंधी नहीं हुई थी तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हो रहे होते हैं आज भी, और आप वहां कवर कर रही होती बनस्पत यहाँ। अरे आपको पता है, मैं शारदा भवानी टेम्पल जो कि एक शक्तिपीठ है कश्मीर का, वो हिस्सा जो कि अभी तक हमारे एक्सेस में नहीं था, और पिछले दिनों कोशिश के बाद वहाँ हमारी एक्सेस शुरू हो गई है। तो मेरे टारगेट पर है कि मैं जब शक्तिपीठ पे काम करूंगी तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जो बात मैंने कही है, कॉन्फ्लिक्ट धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। अच्छा, आप अपना हाँ, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैं पहले भारतीय हूँ। हाँ, करेक्ट। पहला कॉन्फ्लिक्ट अगर यहीं पर क्लियर है आपके माइंड में ना, आप क्या है, मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है भारतीय। मैं ये बात जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे टकराता है, सवाल करता है, मैं देखो तुम पहले भारतीय हो या पहले मुसलमान हो, इस एक सवाल के जवाब में सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। मैं पहले भारतीय हूँ, हाँ, बाद में मुसलमान हूँ। हाँ, जैसे कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई जैन है, कोई सरदार है, हाँ, ऐसे मैं मुसलमान हूँ। हाँ, विभिन्न मत, विभिन्न संप्रदाय। हाँ, तो मेरी सबसे पहले भारतीयता की पहचान है। करेक्ट। आज अगर मैं सड़क पर जा रही हूँ तो मेरे ऊपर क्या लागू हो रहा है, मेरा धर्म या मेरा संविधान? संविधान। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं इसलिए कि भगवान मुझे सजा देगा, नरक में भेजेगा? हाँ, नहीं, हाँ, मेरा संविधान मुझे सजा देगा, मेरा Correct. कानून सिस्टम मुझे सजा कानून, देगा, correct. इसकी ये धारा मुझ पे अप्लाई होगी। वेरी वाइज। तो मुझ पे क्या लागू होता है, मेरी जिंदगी कौन चला रहा है? और अगर आप इंटरनेशनली भी जाएंगे तो किसी को क्या मतलब है कि आप मुस्लिम है कि हिंदू है, उनको तो मतलब है आपका नेशनैलिटी क्या है, उस हिसाब से आपको बिल्कुल, एंट्री मिलेगी। आपके साथ जो ट्रीटमेंट का लेवल है हाँ, वो वेरी करता है कि आप किस देश से आ रहे हैं। जब आप हज करने जाते हैं, हाँ, आप जो यहाँ से हज करने लोग जाते हैं, उनके बैग्स पर ना बड़े बड़े तिरंगे के लगे होते हैं। वो इतने हाजियों में उनकी पहचान भारतीय की पहले है, बाद में मुसलमान की है। मुसलमान तो सभी हैं वहां पर, लेकिन आप अपनी देश से जाने जाते हैं, आपको जो ट्रीटमेंट वहां मिलेगा ना, आप अचानक बीमार हो जाएंगे मीना के मैदान में या कहीं पर भी, तो आपको ट्रीटमेंट पता है कौन दे रहा है? भारतीय सेना के डॉक्टर। वो स्पेशली भेजे जाते हैं स्पेशल ड्यूटी पर कि जब भारतीय जो जाएंगे उनको कोई समस्या होगी तो उनको कौन ट्रीट करेगा। तो यानी कि आपकी देखभाल किसने की? आपके देश ने। और अगर आप कहीं बाहर फंसे भी तो आपकी देखभाल करने वाले एम्बेसी वाले ही होते हैं। एम्बेसी वाले होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं खत्म हो जाता है। आप धर्म के चश्मे से मत देखिए। आप उस संरचना को जब देख रहे हैं तो मैं उसकी मैसिवनेस को देखती हूँ। तो आप भारतीय, आपका ये कहने का मतलब है ये द्वंद आपने कैसे खत्म किया? ये द्वंद कभी था ही नहीं। था ही नहीं, तो कभी आपके नहीं मन में नहीं था ये द्वंद और लोगों के? हाँ, कभी भी नहीं था ये द्वंद। मुझे आकर्षित करते हैं वो सारे मॉन्यूमेंट्स, वो सारे स्थापत्यों द्वारा क्रिएट किए ये वंडर्स। एक्चुअली दीज ऑल आर वंडर्स जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा जाए। ये कैसे बनाया होगा, ये शिखर कैसे बनाया होगा, ये इंटरलॉकिंग कैसे की है, सीमेंट नहीं था तब, इन पत्थरों को जोड़ा कैसे, ये आज भी फंक्शनल है। ऐसी कौन सी संरचना है जो फंक्शनल है? आप पिरामिड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कारीगरी है?
पत्थर 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 एक ऊपर रख दिया आपने, आप उसे पिरामिड को बहुत बड़ा शाहकार नहीं कह सकते, वहाँ पे कोई आर्किटेक्चर नहीं है, है वहाँ ना? पे हाँ कुछ नहीं है। पिरामिड इज जस्ट ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स केप्ट वन एक्चुअली, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और उसकी भी हिस्ट्री आपकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, कि आपने कितने लोगों, कितने ज्यादा, कितने सारे गुलामों से ये वाला काम करवाया था। ये तो कहते हैं, वो हमें हाँ नहीं पता कि वो किसने बनाया और कैसे बनाया। ये तो जो वहां पे गए हैं वो कह रहे हैं ये गुलामों ने किया, ये हाँ किया, जो भी किया। हाँ। यहाँ तक कि मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बताओ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आई थी, तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री किस देश की है? तो मैंने बोला हमारे देश की है। तो कहते हैं तो इसका मतलब जब पिरामिड उस समय बना होगा तो इसका मतलब हमारे देश से कोई गया होगा ना। तो मैंने बोला हाँ आपने तो ये बात सही की, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा इज फ्रॉम दिस कंट्री, राइट? बिल्कुल। ये तो हमारे मैथमेटिशियंस का है। और मैथमेटिक्स कहाँ से आया? मैथमेटिक्स आया एस्ट्रोलॉजी से, जो लोग जानते नहीं है। एंड इनफैक्ट पिरामिड्स आर आल्सो एस्ट्रोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड. They follow the belt astrologically. There is a constellation called, I think, the Dog constellation in the Orion's belt. I have read this a very long time ago, so I may not be right. तो उन्होंने उस constellation के हिसाब से शायद बनाए हैं pyramids. And you'd be surprised to know that the pyramids follow Vastu. Do you know why the pyramids follow Vastu? Because their main entrance, they are pointed towards true north. And in India, we in Vastu, true north is the most important thing. आपके घर, आपके द्वार नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिकली ट्रू नॉर्थ। तो जो वास्तु कंप्लायंट घर होते हैं तो उसका फर्स्ट टेस्ट होता है क्या आपका घर का दरवाजा ट्रू नॉर्थ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं टेम्पल की ही बात करूं तो हमने मुरैना में प्रोजेक्ट किया था। जी। बटेश्वर नाम की एक जगह है, हाँ और शिव का स्थान है। हाँ। वहाँ पर टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो भारत का सबसे बड़ा टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। कभी अर्थक्वेक आया था तो वो सारे शिवालय रेजा रेजा हो गए थे और टुकड़ों में, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए थे। और देखिए, क्योंकि ये शिव का स्थान है तो शिव की चीजें थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ही जाती हैं। तो उसकी रक्षा का जिम्मा किसको दिया? किसको? डाकुओं को। अरे वाह। आप सोचिए, हाँ। इतनी सुंदर मूर्तियां अगर वहां पर आज भी कायम रही, चोरी नहीं हुई, लंदन बेची नहीं गई, तो क्योंकि लोगों में दहशत थी कि यहाँ पे ये डाकुओं का हाइड आउट है। और जब रिस्टोरेशन शुरू हुआ सर के मोहम्मद सर की लीडरशिप में, तो उन्होंने डाकुओं से परमिशन लेकर वो काम शुरू हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप जिसका है उसकी परमिशन बिना लिए एक्चुअली काम करेंगे गुर्जर तो प्रतिहार डायनेस्टी ने हाँ इन मंदिरों का निर्माण कराया था, और वहां पे गुर्जर नाम के डाकू भी होते थे। हाँ। और उन जगहों को टच करना मतलब उनके कोर में इंटरवीन करना था। तो उस जगह के रिस्टोरेशन में डाकुओं ने सपोर्ट किया, और वो प्रोजेक्ट रिस्टोर हुआ, और आज भी उसके रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है शिव टेम्पल्स का, Wow. बटेश्वर। And what was the attitude of the Dakus if you've gone so far? तो उनका क्या attitude था? Initially, they were bit skeptical when KK Mohammed sir wanted to do this project. They were like, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या एक मुसलमान क्यों चाहता है इसका रिस्टोरेशन करना? हाँ। एक ये सवाल आता है ना कि उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है शिवालयों में। मगर जब KK मोहम्मद सर ने किसी से मध्यस्थता करा के उनसे संवाद किया, तो वो उन डाकुओं को समझाने में सफल हुए कि ये तुम्हारे फोर फादर्स के बनाए हुए टेम्पल थे, करेक्ट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाए थे। और मुझ पे आप भरोसा कीजिए, मुझे 3 टेम्पल के रिस्टोर करने का अवसर दीजिए। अगर मैं ठीक कर ले गया तो फिर आगे का सपोर्ट आप दे दीजिएगा। हाँ। तो किसी तरह उन्होंने वो 3 टेम्पल को रिस्टोर करने का काम के मोहम्मद सर और उनकी टीम को दिया। और जब वो 3 टेम्पल रिस्टोर हुए, आप सोचिए पत्थरों के ढेर में से ये ढूंढ के निकालना कि ये शिव मंदिर है या विष्णु टेम्पल है। बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कैसे क्योंकि ये होगा? नीचे गिर पड़े होते टुकड़े हैं टुकड़े वो पहाड़ लगे हुए हैं, पत्थरों के पहाड़ लगे हुए हैं। तो वो उन्होंने रिस्टोर किया, और जब वो टेम्पल रिस्टोर हो गए, तो जब डाकुओं ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, और तब उनका फुल सपोर्ट मिला, और वो प्रोजेक्ट फुल स्विंग में आगे काम किया। और आज अभी आपको मौका लगे तो जरूर जाइएगा बटेश्वर, ज्यादा दूर नहीं है, ग्वालियर के पास है। जरूर जरूर। तो अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, और ये शायद मेरा सवाल नहीं है, ये हमारे दर्शकों के लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत वेल ट्रैवल्ड हैं और मैं आई डोंट थिंक सो आई एम एज वेल ट्रैवल्ड एज यू आर, बट आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट माई सेल्फ। सो ये प्रश्न मेरे दिमाग में तो कभी आएगा ही नहीं, परंतु ऑडियंस के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, ट्रैवल क्यों? क्या मिलता है ट्रैवल से? सुख। सुख। आप अपने आप को धनी किस रूप में गिनेंगे, सफल किस रूप में गिनेंगे? कितने पैसे आपने कमाए,
कितना भंडारण आपने किया धन हम्म, का, हम्म, या कितने अनुभव आपने कमाए, हम्म, कितना प्रेम आपने कमाया। हम्म। मेरी यात्राओं ने मुझे हल्का बनाया, अच्छा, हल्का बनाया, हल्का किया बिल्कुल, क्यों? हाँ, हवा जैसा हल्का बनाया। वाह। हाँ, आप जब एक जगह पे रहते हैं, हम्म, गांव में, कस्बे में, अपने शहर में, आपकी दुनिया छोटी होती है, सीमित होती है। शायद कभी आपने वो चिड़िया की कविता सुनी होगी कि इतना सा ही बस है संसार, जब मैं मैंने छोटा बच्चा था। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, गूलर का कीड़ा नहीं रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम केवल एक जगह पर रहने के लिए बने होते तो हम वृक्ष होते, हमारी जड़ें होती, करेक्ट, हमारे पैर हैं। करेक्ट। यानी कि हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया कि हम एक्सप्लोर करें, हाँ। हम चलें, हम देखें दुनिया। ये हमारी नैसर्गिक भूख है। हम्म, जब हम यात्राएँ करते हैं, हम्म, तो हमारे अंदर की जो जो रिज़र्वेशंस होते हैं, हम्म, जात-पात, धर्म, ये सब धीरे-धीरे छँटने लगते हैं, हम्म, क्योंकि आपके अनुभव उस आपको परिष्कृत करते हैं। हम्म, हम्म, जब हम छोटी जगह पे रहते हैं तो हम अहंकार से भरे होते हैं। हमें लगता है मेरा परिवार हम्म, बेस्ट, मेरा धर्म बेस्ट, हम्म, मेरा समाज बेस्ट, मेरा शहर बेस्ट। हम्म, इसके बाहर की दुनिया से मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। हम्म, जब आप बाहर निकलेंगे, हम्म, तब आप पाएँगे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सम्मान करने लायक हैं, जो सीखने लायक हैं, हम्म। और ये आपको बहुत समृद्ध बनाएगा। Thank you so much. It was absolutely wonderful talking to you and learning about your experiences, your books, your travels, and those lovely anecdotes that you told us. Namaste. Jai Shri Ram.